Hello students, we were discussing about the safe handling and storage of water. Until now, in this lesson, we have discussed about the importance of water. So water is needed by our body for digestion of food, right? And for removal of waste from the body. So that's why water is important. And next we have learned about potable water. So what is potable water? Water which is clean and fit for drinking is called potable water. And if what happen if we drink unclean water? अगर हम unclean water पीते हैं, then what will happen? So drinking unclean water can cause diseases like jaundice, diarrhea, dysentery and cholera. That means हम बीमार पड़ सकते हैं अगर हम unclean water पीते हैं. And then we have started learning about the methods of purification of water. So first of all, we have discussed about the boiling. Boiling is the most common method of purifying water. Why? Because boiling kills the germs present in water. So water में जितने भी germs present हैं वो सारे boiling से क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे. And then the water will become safe to drink. And then next is your filtration. And in previous video we have discussed about that how we can filter water through a clean and thin cloth. So you can see here in the picture that water is being filtered through a clean cloth. हम कंटेनर के माउथ में क्लीन एंड थिन क्लोथ को रखते हैं और ऊपर से वाटर डालते हैं. सो वाटर नीचे चले जाता है, बट जो डस्ट पार्टिकल्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो सारे क्या रह जाते हैं? इस क्लोथ में रह जाते हैं, जिससे ये हमारा वाटर क्लीन हो जाता है. एंड देन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेडिशनल फिल्टर which is made up of gravel and sand, or you can say gravel and sand is used in it. So how it works? You can see here there are 4 pots and on the topmost pot there is a gravel. इसमें क्या है? Gravel. And in the next pot there is a sand and then charcoal, and then in the last pot the filter water get collected. So जब हम वाटर यहाँ पर इस फर्स्ट पॉट में फिल करते हैं तो स्लोली यहाँ पर ये डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पर थोड़े क्लीन होते हैं. देन फिर ये ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें आता है नेक्स्ट पॉट में, एंड देन इट कलेक्ट्स हियर. यहाँ पर सैंड था, सैंड से अगेन ये थोड़ा और क्लीन होता है. उसके बाद ये अगेन ड्रॉप बाय ड्रॉप गोज डाउन, एंड देन हियर द चारकोल क्लीन्स दैट वाटर. एंड आफ्टर passing through these 3 pots, ultimately it goes into the last pot जहां पर हमको filter water मिलता है. So such type of filters are called traditional filters. Now in these 2 types of methods we can clean the suspended particles or the dust particles, but it does not remove the germs. Right? So filtration removes dust and other suspended particles from water. जो भी dust particles और जो तैरती हुई चीजें जैसे आपको कई बार नजर आती है वाटर में, जो नजर आने वाली चीजें हैं वो सारी जो ये हमारे मेथड थे 2, जिसमें हमने क्लीन एंड थिन क्लोथ लिया था, एंड सेकंड जो हमारा ट्रेडिशनल फिल्टर कंटेनिंग सैंड एंड ग्रेवल, इससे जो क्लीन होता है वाटर, दैट रिमूव्स डस्ट and other suspended particles from water. So suspended particles I have already told you, जो water में आपको तैरते हुए नजर आते हैं. ऐसे particles water में से remove जरूर करते हैं. However, this method does not remove germs. So obviously you know that जो germs है we can't see it with our naked eyes. हम अपने normal eyes से उनको नहीं देख सकते. So
वो उनमें से पास हो जाते हैं वाटर के साथ साथ. So these types of filters does not remove the germs. So for that what we can do? So जब ये वाटर इनसे क्लीन हो जाता है उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? यू रिमेंबर द फर्स्ट मेथड, दैट इज बॉइलिंग. सो बॉइलिंग मेथड क्या करता था? हमारे जो जर्म्स होते थे उनको मार देता था. सो अगर हम इन टू मेथड्स को कंबाइन कर दें, हाउ? पहले हम फिल्ट्रेशन से, जो ये हमारे फिल्ट्रेशन थे दोनों मेथड्स, इनसे हम क्लीन कर लें वाटर को, राइट? डस्ट पार्टिकल और सस्पेंडेड पार्टिकल से सारे रिमूव कर लें. आफ्टर दैट वी शुड बॉयल दैट फिल्टर्ड वाटर. उसके बाद उस फिल्टर्ड वाटर को हम क्या कर लें? बॉयल कर लें. सो व्हाट विल हैपन? डस्ट पार्टिकल्स भी रिमूव हो जाएंगे और साथ में जो जर्म्स हैं वो भी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. देन दैट वाटर बिकम्स सेफ फॉर ड्रिंकिंग. दैट इज क्लीन वाटर. वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, जर्म फ्री एज वेल एज द डस्ट फ्री. सो इन दैट वे वी कैन clean the water. But nowadays many types of modern filters are available. आज के टाइम में क्या है? मॉडर्न फिल्टर्स बहुत सारे आ गए. Nowadays you don't see such type of traditional filters. आपने कभी देखे हैं ऐसे ट्रेडिशनल फिल्टर्स? आई डोंट थिंक सो. और ऐसा भी नहीं देखा होगा जो ये हम क्लीन और थिन क्लोथ से क्लीन कर रहे हो वाटर को. So we can't see such type of filters nowadays. Nowadays, many types of modern filters are available. बहुत सारे टाइप्स के फिल्टर्स हैं. आपके ROs लगे हुए हैं, राइट? बहुत सारे इतने अच्छे फिल्टर्स लगे हुए हैं. These filters not only remove the dust and other suspended particles, but they also kills the germs. तो ये सिर्फ हमारे डस्ट पार्टिकल्स को ही रिमूव नहीं करते जो ये मॉडर्न फिल्टर्स होते हैं. They also remove germs. So हमें सेपरेटली टू मेथड्स करने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ जो ये हमारे फिल्ट्रेशन के साथ हमें बॉइलिंग करने की ज़रूरत नहीं है. जो मॉडर्न फिल्टर्स हैं, यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ वन मॉडर्न फिल्टर. सो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मॉडर्न फिल्टर्स. और इसमें हमारा जो वाटर है उसमें से जितने भी डस्ट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो तो रिमूव होते ही होते हैं. साथ में जो जर्म्स हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं. सो वाटर फिल्टर्ड बाय सच फिल्टर्स कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग. सो ऐसे फिल्टर से जो वाटर हमें मिलता है उसको हम डायरेक्टली ड्रिंक कर सकते हैं. हमें कोई और उसको बॉयल करने की या कोई और ज़रूरत नहीं है. बिकॉज बॉयल क्यों करते हैं हम? बॉयल जर्म्स को किल करने के लिए, जर्म्स को मारने के लिए करते हैं. बट इसमें ऑलरेडी जो जर्म्स हैं वो रिमूव हो चुके होते हैं और सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी रिमूव हो जाते हैं. सो ये दोनों ही काम कर देता है. सो दैट्स वाई द वाटर विच वी गेट फ्रॉम सच टाइप ऑफ मॉडर्न फिल्टर्स वी कैन डायरेक्टली यूज इट फॉर ड्रिंकिंग, राइट? And the next method is your chlorination. Chlorination में क्या होता है कि क्लोरीन इज केमिकल, वो हम वाटर में डाल देते हैं एंड दैट केमिकल किल्स द जर्म्स. सो फिल्टर्ड वाटर. सो ये जो हमारे मेथड्स थे, अगर ये हमारे पास मॉडर्न फिल्टर नहीं है, हमने ट्रेडिशनल मेथड से इसको क्लीन किया है, then filtered water can also be purified by adding a correct small amount of chlorine in it. So हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि कितने अमाउंट में क्लोरीन को हमें डालना है. ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ हार्मफुल. इट शुड बी एडेड इन अ प्रॉपर करेक्ट अमाउंट, राइट? सो प्योरीफाइड जो वाटर है उसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग? एडिंग अ करेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन इट. क्लोरीन ऐड करेंगे एंड दिस किल्स जर्म्स. क्लोरीन जो है वो सारे जर्म्स को
मार देगा एंड मेक्स इट फिट फॉर ड्रिंकिंग. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड. अब बॉइलिंग अगर नहीं कर सकते तो इंस्टेड ऑफ बॉइलिंग, अब बॉइलिंग तो हम कितना थोड़ा वाटर कर सकते हैं, बट जैसे हमारे रिजर्वायर्स होते हैं जहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा पानी को रखा हुआ होता है, टैंक्स होते हैं, बिग टैंक्स, जहाँ से हमारे घर में वाटर आता है, राइट. हमारे घर में कहाँ से आता है? टैप से आता है. तो बिग जो टैंक्स होते हैं उनमें वाटर को बॉयल नहीं कर सकते, तो उसमें हम क्लोरीन डाल देते हैं. तो क्लोरीन की टैबलेट्स आती है, क्लोरीन की टैबलेट्स उसमें डाल देते हैं टैंक्स में, जिससे कि जो वाटर है वो जर्म फ्री हो जाता है. सो दैट्स वाई जो हमारे घर में वाटर आता है इट इज़ मच बेटर देन द river water or the groundwater that we have already discussed in our previous video. So this is all about the method of filtration of water. So we have discussed different methods, and now in next video we will discuss the need for avoiding stagnation of water. Thank you.